خود غوث پاک نے فرمایا زمین کا بیلنس قائم ہے عبد القادر کی وجہ سے. غوث پاک نے فرمایا زمین میں یہ جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ ہوتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے ہوتے ہیں. فرمایا غوث اعظم سرکار نے زمین پر جو بچے شفا پاتے ہیں یہ عبد القادر کی وجہ سے. فرماتے غوث پاک بتا دو دنیا والوں سے جس کو خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کے جلسے میں آ جائے. فرماتے غوث پاک جس نے نہ دیکھا مدینے والے کو عبد القادر کو دیکھ لے. فرماتے حضور غوث اعظم سرکار جس کو تمنا ہو کعبہ دیکھنے کی عبد القادر کا روزہ دیکھ لے, دربار دیکھ لے عبد القادر کا. ایسے کھڑے ہوئے اپنے حجرے شریف کے سامنے میرے آقا سیدنا شیخ اور فرماتے سنو بغداد والو, میرے آقا نے مدینے میں ارشاد فرمایا تھا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے. فرماتے میں ان کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہوں جو میری اس گلی سے گزر جائے گا اس پر میری شفاعت واجب ہے. اللہ اللہ اللہ. السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک, صحت مند اور سلامت ہوں گے. تو آج ہم پھر سے سننے والے ہیں ہماری میٹھی میٹھی پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے حلوہ خوروں کی کچھ عجیب و غریب کہانیاں, اور ساتھ میں دیکھنے والے ہیں حلوہ خوروں کی کچھ عجیب و غریب ویڈیوز. تو پیش ہے پہلی کہانی چیخنے چلانے والے گلا پھاڑ امین القادری کی زبانی. کہ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے, درختوں کی کلموں کو, اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے, سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے, انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے, پتے ختم ہو جائیں گے, روشنائی ختم ہو جائے گی, سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا. میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی شان یہ ہے وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا, سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. غوث وہ ولی ہے کعبہ جس کے گھر کا طواف کرنے آتا ہے, کعبہ جس کی چوکھٹ پہ آتا ہے, وہ غوث الاعظم دستگیر کی شان. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ بیوقوف انسان اور کتنا گرے گا, مطلب اور کتنا گرے گا نظر و نیاز کے لیے, تحفے تحائف کے لیے, اپنی جھوٹی عزت کروانے کے لیے, مال دولت کے لیے, اور لوگوں کو اپنا مرید بنانے کے لیے. اور یہ انسان کتنا گرے گا یہ روٹیوں اور بوٹیوں کے لیے. پہلے تو اس نے اپنے پیر کی شان بیان کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں گڑھی, ایسی جھوٹی کہانیاں جہاں پر فزکس کا قتل کر دیا گیا, جہاں پر کوئی لا نہیں کام کرتا, جہاں پر نہ کہیں گریوٹی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے, وہاں پر بابے جو ہے ہوا میں اڑتے ہیں, سورج میں چلے جاتے ہیں, چاند میں چلے جاتے ہیں, اور وہاں پر کوئی قانون بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر بابے جو ہیں یوں نظر مار کر مرید مار دیتے ہیں اور قدو پر قتل کر دیتے ہیں. ہم نے یہ کہانیاں اپنے دل پر پتھر رکھ کر ہضم کر لی. پھر اس نے اپنے پیر کی شان بیان کرنے کے لیے جھوٹی اور من گھڑت حدیثیں گڑھی, ایسی حدیثیں گڑھی جو کہیں موجود ہی نہیں تھی, کہیں بھی کسی کتاب میں لکھی نہیں تھی. ایسی حدیثیں اس نے بیان کی, جھوٹی حدیثیں بیان کی. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا, لیکن اب اس بیوقوف نے حد پار کر دی ہے, اس بیوقوف نے حد پار کر دی. اب اس نے اللہ کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئی قرآن شریف میں وہ اس نے اب اپنے پیر کی شان میں بیان کرنی شروع کر دی ہے. اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہو اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو اللہ کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں. بے شک اللہ غالب ہے, حکمت والا ہے. کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے روشنائی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے, اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں. جی ہاں, امین القادری صاحب جو بیان فرما رہے تھے, جو تعریفیں اپنے پیر کی شان میں بیان کر رہے تھے, دراصل وہ قرآن شریف کی آیات ہے, اور اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اپنے کلام میں اپنی شان میں بیان کی ہے. اور اس بیوقوف انسان نے وہی آیات, قرآن شریف کی وہی آیات اپنے پیر کی شان میں بیان کی ہیں. کیا یہ گستاخی نہیں ہے؟ پھر ان کے مرید یہاں آ کر گالیاں دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے جو
عالم ہیں उनकी तौहीन करते हो। ये हमारे आलिम हैं, ये कोई आलिम नहीं है, ये जाहिल हैं। इसको ये नहीं मालूम कि ये अल्लाह ताला ने अपनी शान में बयान की हैं और इस बेवकूफ़ इंसान ने वही आयात अपने पीर की शान में बयान कर दी। पहले तो इसने झूठी हदीसें गढ़ी, झूठी कहानियाँ गढ़ी, लेकिन अब तो इसने कुरान शरीफ की आयत को भी नहीं छोड़ा है। कुरान शरीफ की आयत को भी इसने अपने पीर की शान में बयान करना शुरू कर दिया है। तो मेरे भाई, ये कैसा आलिम है? ये आलिम नहीं है, ये जाहिल है। और ये तो यहीं पर नहीं रुका, इसके बाद तो इसने कहा कि सारे लोग तो काबा का तवाफ करते हैं, लेकिन काबा मेरे पीर के हुजरे का तवाफ करता है। गौस वो वली है, काबा जिसके घर का तवाफ करने आता है, काबा जिसकी चौखट पे आता है, वो गौसुल आजम दस्तगीर की शान। अब इस बेवकूफ़ इंसान ने कभी किताबें खोलकर देखी नहीं, कभी सही बुखारी या फिर सही मुस्लिम खोलकर देखी नहीं। इसने तो अलिफ लैला की किताबें पढ़ी हैं, जहाँ पर बाबे जो हैं हवा में उड़ते हैं, जहाँ पर बाबे जो है पानी पे चलते हैं, बाबे जो हैं वो यूं नज़र मार कर जो है मुरीद मार देते हैं और मुर्दे जिंदा कर देते हैं। इसने तो यही अलिफ लैला की किताबें पढ़ी है, इसने कभी हदीसें पढ़ी नहीं। ये जाहिल तरीन इंसान है। अगर इसने हदीसें पढ़ी होती तो इसने सुलह हुदैबिया के बारे में पढ़ा ही होता, जो कि सही बुखारी में हदीस नंबर 2731 में आपको मिल जाएगी, जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा उम्रा करने आए थे, लेकिन काफिरों ने रोक लिया। वहां पर एक सुलह हुई और उस सुलह में एक शर्त यह भी थी कि आप इस साल उम्रा नहीं कर सकते, अगले साल आइएगा। खैर, जब वो वापस जा रहे थे तो सहाबा रो रहे थे कि हम उम्रा नहीं कर पाए, काबा का दीदार नहीं कर पाए, तो वो रो रहे थे। लेकिन काबा नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। सही हदीस है, आप खुद पढ़ लीजिए, हदीस नंबर 2731 सही बुखारी, आप खुद पढ़ लीजिए। काबा नहीं आया, लेकिन वही काबा इनके पीर के हुजरे का तवाफ करता है। सहाबा के लिए वो काबा नहीं आता। अंबिया ने काबे का तवाफ किया है, सहाबा ने काबे का तवाफ किया है, वलियों ने काबे का तवाफ किया है, लेकिन वही काबा इनके पीर का नहीं बल्कि पीर के हुजरे का तवाफ करता है। आप खुद देख लीजिए कि कितनी बड़ी गुस्ताखी है ये। इन लोगों ने माल दौलत के लिए और नजर नियाज के लिए, अपनी झूठी इज्जतें करवाने के लिए और नजरानों के लिए, पैसों के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए, रोटियों और बोटियों के लिए पहले तो पीरी मुरीदी का सिलसिला जारी किया। हालांकि कुरान शरीफ में, हदीसों में पीरी मुरीदी नहीं आई है, लेकिन इन लोगों ने दौलत के लिए ये जारी कर दिया। उसके बाद इन लोगों ने अपने पीर की शान ऊंची दिखाने के लिए मन घड़त किस्से और कहानियां गढ़ी, जिसमें बाबा जी जो थे वो हवा में उड़ा करते थे, वो पानी पे चला करते थे, वो मुर्दों को जिंदा किया करते थे, और तो और वो यूं नजर मार कर लोगों को मार देते थे, कद्दू पर कत्ल करते थे। इन लोगों ने ऐसे मनगढ़ंत किस्से गढ़े, इतने में ही इनका दिल नहीं भरा। फिर इन लोगों ने झूठी और मनगढ़ंत हदीसें गढ़ी ताकि ये अपने बाबाओं की शान बढ़ाए। झूठी और मनगढ़ंत हदीसें गढ़ी इन लोगों ने, लेकिन इतने से ही इनका दिल नहीं भरा। अब तो इन लोगों ने अपने बाबाओं की शान में कुरान शरीफ की वो आयत भी कहनी शुरू कर दी है जो कि अल्लाह ने अपनी शान में बयान की है। खैर, इनके वो बाबे जो हवा में उड़ा करते थे, जो मुर्दों को जिंदा किया करते थे, जो पानी पे चला करते थे, जब वो इंतकाल कर जाते थे तो इन लोगों ने उनकी बड़ी बड़ी मज़ारें बनाई, वहां पर बड़ी बिल्डिंग बनाई इनकी कब्र पर, और फिर लोगों से कहा कि आओ, तुम पहले मस्जिदों में अल्लाह से मांगा करते थे, सिर्फ एक अल्लाह से मांगते थे, अब आओ पीर साहब की मज़ार से भी मांगो, इनकी कब्र से भी मांगो, क्योंकि अल्लाह ने वलियों को ये इख्तियार दे रखा है कि वो मरने के बाद भी लोगों की मदद कर सकते हैं, और अल्लाह ने इनको भी मुश्किल कुशा बनाया है। हालांकि ऐसा किसी किताब में, कुरान शरीफ में, किसी हदीस में बिल्कुल नहीं लिखा। ये भी इन लोगों ने अपनी तरफ से बातें बना ली ताकि इन लोगों के जेब जो है वो बढ़ते रहे। यहीं पर ये लोग नहीं रुके, इसके बाद इन लोगों ने उन मज़ारों पर, अपने जो इनके बाबे थे उनकी मज़ारों पर चादर चढ़ानी शुरू कर दी और वहां पर फूल बरसाने शुरू कर दिए, और लोग आते गए, चादर चढ़ाते गए। हालांकि मज़ार के बाहर जो भिखारी बैठे होते थे, मिस्कीन बैठे होते थे, वो ठंड से कांपते थे, लेकिन उनको चादर कोई नहीं देता था। अलबत्ता जो पीर साहब मर चुके हैं, कब्र में हैं, उनको चादर चढ़ाई जाती थी। हालांकि अल्लाह ने तो मिस्कीनों की मदद को कहा है, अल्लाह ने तो
गरीबों की मदद करने के लिए कहा है। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि तुम कब्र पर चादर चढ़ाओ। इसके बाद इन लोगों ने मज़ारों पर नाचना शुरू कर दिया, वहां पर डिस्को करना शुरू कर दिया, वहां पर मुजरा करना शुरू कर दिया, वहां पर खेल तमाशे लगाने शुरू कर दिए, वहां पर मेले लगाने शुरू कर दिए, वहां पर करतब दिखाने शुरू कर दिए। खैर ये लोग यही नहीं रुके, इसके बाद तो इन लोगों ने उन मज़ारों पर इमामे बांधने शुरू कर दिए, कब्रों पर इमामे बांधने शुरू कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये कहां से लाया इन लोगों ने, ये किस हदीस में लिखा है? न हदीस में चादर चढ़ाना लिखा है और ना ही कब्र पर इमामा बांधना लिखा है। ये लोग यही नहीं रुके, इसके बाद इन लोगों ने कुछ मज़ारात को काबे की शक्ल दी और फिर उसका तवाफ करने लगे, मज़ार का तवाफ करने लगे। हालांकि ये भी जायज़ नहीं है, ये भी हराम है। उसके बाद तो ये लोग फिर मज़ारों पर सजदे करने लग गए और आज भी मज़ारों पर सजदे होते हैं। अब मुझे कोई ये ना कहना कि जो मज़ारात पर सजदे करते हैं वो सिर्फ जाहिल होते हैं। ये जो शख्स आप सजदा करते हुए देख रहे हैं, ये दरअसल कश्मीर का बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है। कश्मीर में इसके लाखों लोग फॉलोअर हैं, लाखों लोग मुरीद हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, इसका नाम है उवैस कादरी। तो ये कोई जाहिल शख्स तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो हालत ये हो गई है कि मज़ार की बात तो छोड़ो, अब तो लोग जिंदा लोगों को सजदा करते हैं, जिंदा पीरों को सजदा करते हैं जो उनके सामने होते हैं। लोगों का आईक्यू लेवल इस हद तक गिर चुका है कि अब वो जिंदा लोगों को सजदा करते हैं, इंसानों को सजदा करते हैं। हालांकि सजदा अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं किया जा सकता। खैर ये लोग यही नहीं रुके, इसके बाद इन लोगों ने अपने पीरों की फोटोग्राफ्स जो होती थी, जो उनकी तस्वीरें जो होती थी, हालांकि किसी को पता नहीं था कि पीर साहब ऐसे दिखते थे, उनकी फोटोग्राफ्स जो है वो बेचनी शुरू कर दी और लोगों ने वो तस्वीरें जो है अपने घरों में लगानी शुरू कर दी। कहा कि इससे जो होता है, इससे बरकत आती है घर में, इससे रहमत आती है घर में। हालांकि सही हदीस है कि जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। आपने भी ये तस्वीरें देखी होंगी, बहुत सारी लगाई जाती थी और आज भी लोग लगाते हैं कि घर में जो है इससे बरकत आएगी, क्योंकि ये पीर साहब की तस्वीर है। धीरे धीरे ये तस्वीरें जो है मार्केट में आ गई और फिर लोगों ने इन तस्वीरों पर चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर दिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हिंदू लोग अपने देवी देवताओं की जो तस्वीरें हैं उन पर पैसे चढ़ाते हैं और नजर नियाज चढ़ाते हैं, तोहफे चढ़ाते हैं, तो इन तस्वीरों पर भी चढ़ना शुरू हो गया। और फिर इन्हीं तस्वीरों ने बुतों की शक्ल इख्तियार कर ली, इन्हीं तस्वीरों ने मुजस्मों की शक्ल इख्तियार कर ली। और आज आप देख सकते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी जो कि अल्लाह के वली थे, उनका बुत बनाया गया है। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से हिंदू अपने देवी देवताओं को दूध से नहलाते हैं, इसी तरह से इस शेख अब्दुल कादिर जीलानी के बुत को भी दूध से नहलाया जाता है। हालांकि शेख अब्दुल कादिर जीलानी एक नेक इंसान थे, अल्लाह के वली थे और इस सब से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनके नाम पर बहुत सारे बेवकूफ़ लोगों ने, बहुत सारे कब्र परस्तों ने धंधे खोल रखे हैं। उनके नाम पर बहुत सारे लोगों ने कब्र परस्ती का धंधा खोल रखा है। और इस पर मुझे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की ये लाइन याद आ रही है। करे गैर गरबूत की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, सितारों में माने करिश्मा तो काफिर, मगर मोमिनों पे कुशादा है राहें, परस्तश करें शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, शहीदों पे जा जा के मांगे दुआएं, मजारों पे दिन रात मन्नतें चढ़ाएं, न तौहीद में कुछ खलल इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। खैर आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।